welcome everyone to yet another episode of Delhi Nursery Admission Masterclass. We have with us an esteemed panel of school experts who would go ahead and address all your queries and concerns regarding the Delhi school nursery admissions. So I'll just take no further time of you and go ahead and introduce you to our esteemed school panelists. So we have with us Mr. Ritesh Chawla, who's the regional head at UniApply. He has been having an experience of about 10 years with the school education industry and has helped n number of schools scale their admissions. We welcome you, Ritesh. Thank you, Bhumika, for introduction. You're welcome. So let's move to Mr. Swami Sachdeva, who is the area manager at UniApply and has been providing assistance and his endless support to n number of schools and taking their admissions to another level. We welcome you, Swami. Thank you, Bhumika. Last but not the least, we have with us Ms. Ayushi Srivastav, who is the senior growth consultant at UniApply and who has been providing her endless support to all the schools and parents as well, providing support to the parents with all their queries and concerns and helping them understand each and everything about admission process. Thank you so much, Bhumika. You're welcome. So I would take no further of your time and hand it over to the school experts who would address all your queries and concerns regarding the admission timeline, notifications, criteria, and anything will be addressed live in the session. You can post all your questions here and shall be answered by the UniApply experts. So welcome everyone. I'm Ritesh and I will start this session. Like all of us know that the excitement of admissions comes with a lot of anxiety. Anxiety of doing a wrong attempt, of not knowing something. There's a lot of parents who will be applying for the first time for their kid or maybe the first kid. They'll be anxious, right? That what document to be used, how the process will go, when to fill the application, when to submit the application, how to reach out to the school. There'll be n number of questions for, especially for those parents who are actually applying for the very first time for the first kid, right? Those who are, applying for the second kid, they must be aware some of the process, but again, they also need some of refresher or to know what is there, what is new eligibility and so on. So to make it easy for all of you, we'll keep this session and like bilingual, we'll keeping English and Hindi both. I will start with the basics like Delhi nursery admission guidelines. This is very, very important for all the parents to know कि number of seats किस हिसाब से structured होती है. So the very first slide which says that 100% seats का आपको bifurcation दिया हुआ है बहुत clearly, जिसमें से larger set of seats यानी कि 50% of the seats are reserved for general. Second, 25% of the seats are reserved for EWS plus CWSN, means economical weaker section plus child with special needs, right? 20% of the seats are reserved for management quota, whereas 5% seats are reserved for staff quota. So this is broadly as per the guideline of DOE, Directorate of Education, which functions under the NCT of Delhi government and controlled by Ministry of Education, Delhi government, right? So ये जो seats का bifurcation दिया हुआ है ये DOE की guideline के हिसाब से कि minimum one school has to keep 50% for general and 25% for EWS plus child with special needs. 20% मैनेजमेंट कोटा, काफी सारे स्कूल्स दिल्ली में ऐसे हैं जो कि इन सीट्स को भी जनरल सीट्स में मर्ज करके अपने कोटा को 70% ऑफ जनरल सीट्स कर देते हैं. बट लार्जली दिस इज द गाइडलाइन बाय DOE. सेकंड क्वेश्चन आता है कि EWS के सीट्स या EWS के एडमिशंस कब शुरू होते हैं, जनरल कैटेगरी के एडमिशन कब शुरू होते हैं. सो आई वांट टू क्लियर दिस आउट दैट जनरल for admission in general category, the admission are starting from 15th of December. We will talk about the guidelines. और EWS के admission जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल यानी कि DOE के पोर्टल पे ही होते हैं.
अब बात करते हैं 20% मैनेजमेंट कोटा। इस कैटेगरी के अंडर जो एडमिशन होते हैं ये 50% कैटेगरी के साथ ही स्टार्ट होते हैं। इट मींस द एडमिशन फॉर रिमेनिंग 75% मींस 50% of general, 20% of management quota and 5% of staff quota admission start at one go by the school, and 25% of the quota EWS plus CWSN, like I said, economic or weaker section plus child with special needs, ये जो कोटा है इसके अंडर एडमिशन जो है सेपरेटली डीओई के पोर्टल पे स्टार्ट होते हैं। नाउ आई विल शेयर सम ऑफ द key factors with you. Before that, I will say that whatever questions you have, you can post in Q&A section, you can mention in chat box, but let us first go through this PPT because a lot of your question will be answered during the course of this presentation. और उसके अलावा जो भी आपके questions बचेंगे, we would happy to help you with the live answers. और we have an offline experts जो कि backend पे हैं और इस chat में आपको questions के कुछ answer देते रहेंगे और जो मैं लाइव आंसर करूंगा आई मार्क इट एज अ लाइव। नाउ सेकंड इज एडमिशन शेड्यूल फॉर एंट्री लेवल क्लासेस। इफ यू कैन गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड प्लीज। सो एडमिशन शेड्यूल फॉर एंट्री लेवल क्लासेस मींस क्लास नर्सरी, क्लास केजी एंड क्लास 1। सो ये तीन क्लासेस जो होती है जिसको डीओई गवर्न करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम सभी को पता होना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर या पहली बार अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तीनों में से एक क्लास मिनिमम डीओई गवर्न करता है। इट मींस जो डीओई की स्पेसिफिक एडमिशन विंडो होती है या डीओई का क्राइटेरिया होता है वो स्कूल्स को फॉलो करना होता है। कुछ काफी सारे स्कूल दिल्ली में मोर देन 70% schools are they start their admission process from class nursery, but there are a lot of other schools which start their admission process from class UKG or KG. Then there are schools which start their admission process from class 1. So जो भी स्कूल की बिगिनिंग क्लास होगी इन तीनों क्लासेस में से that is governed under DOE. So अगर बच्चा आपका क्लास नर्सरी के लिए है, so the age is between 3 to 4, and if it is for KG or let's say UKG, few schools call it KG, few schools call it UKG, so I'm using a combined name KG and UKG. Then the age bracket will be 4 to 5 and 5 to 6 for class 1, right? So 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे का एडमिशन जो है अगले जो मतलब 15th of December से 7th of January के बीच होगा। We will now discuss the timeline because timeline एक ऐसी चीज है which is really important for every parent, right? You should put a reminder. You can go to uniapply.com. You can put a reminder there against a school name where you desire to apply, so that you get the auto emailer or let's say the reminder that when to apply, or you can put a reminder. So I am going to discuss the broader timeline, though there are several other date which has been specified by DOE कि किस दिन लॉटरी होगा, किस दिन फर्स्ट लिस्ट आएगी, किस दिन सेकंड लिस्ट आएगी, या स्कूल के पास कितना टाइम है पूरे एडमिशन को क्लोज करने के लिए, पूरी टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है विच एवरी पेरेंट शुड कीप इन देयर माइंड, इट मींस दे शुड नॉट नीड एनी रिमाइंडर फॉर दैट, विच इज एक स्टार्ट डेट एप्लीकेशन की दिल्ली में और एक लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन स्कूल्स। सो दो इंपॉर्टेंट डेट है, 15th of December 2021 को एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन वेंसडे को, और ये पूरा प्रोसेस जो है एंड होगा 7th of January 2022, इट मींस फ्राइडे को। सो मैं आपको बता देता हूं सभी व्यूअर्स को, हमारे पास काफी सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं, कि इस बार डीओई ने एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया है, बट वो ज्यादा टाइम इसलिए सो दैट लास्ट मिनट रश ना हो, आप टाइमली इसको अप्लाई कर लें। सो 15 दिसंबर से 7 जनवरी का एक अच्छा खासा विंडो आप सभी के पास है फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि 15 को सभी स्कूल विंडो अपनी ओपन कर देंगे फॉर द एप्लीकेशन, और 7 तारीख को अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सबमिटेड। नाउ द डेट फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ selected children including wait list along with marks allotted under point system. So we are saying this is as per the norms of DOE, right? DOE ऐसा कहता है कि 4 तारीख तक, मतलब till 4th they have to do it, but they can even do it a little early to 4th if they are done with their process,
they can showcase their first list. तो जिसमें वो क्या करेंगे, आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से पॉइंट्स होंगे वो वहां पे नाम के अगेंस्ट और एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे. सो वो लिस्ट जो है आपकी 4 फरवरी 2022 या उसके पहले तक डिस्प्ले हो जाएगी. अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स में कुछ गलती है, यू फॉल इन बिटवीन 0 to 3 किलोमीटर, हम पॉइंट क्राइटेरिया का डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, बट मैं अभी आपको ब्रीफली बता देता हूँ. जैसे अगर आपको 0 to 3 किलोमीटर के बेसिस पे, पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे बेसिकली एडमिशन होता है, जिसमें 0 to 3, 3 to 6, 6 to 12 किलोमीटर, इस तरीके से डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट स्लैब होते हैं. तो अगर 0 to 3 किलोमीटर में आप फॉल होते हो बट आपको मार्क्स मिले हुए हैं बिटवीन 3 to 6, देन यू कैन गो बैक टू स्कूल एंड आस्क देम कि मेरा ये गलत है एंड प्लीज रेक्टिफाई दिस. तो इसके लिए आपको एक विंडो दी जाएगी February 5th to 12th, right? Which is a Saturday to Saturday window, right? So you can approach school, you can get that rectified, right? Then date of displaying the second list. सेकेंड लिस्ट में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट में अगर स्कूल के एडमिशन कंप्लीट नहीं होते, सारी सीट्स फुल नहीं होती जनरल कैटेगरी के अंडर जो 50% रिजर्व्ड है, अगर उसमें कुछ सीट्स खाली बच जाती हैं तो स्कूल सेकेंड लिस्ट आउट करता है. और सेकेंड लिस्ट जैसे ही आउट होती है उसमें जो वेटिंग है फर्स्ट लिस्ट के, उनके नाम पहले आ जाते हैं और बाकी जो एप्लीकेंट्स है जिनका फर्दर स्कोर कम रहता है उनका सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाता है. बट मैं यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियरली आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेकेंड लिस्ट इज कंडीशनल. अगर फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन प्रिक्योर कर लेता है स्कूल तो जरूरी नहीं है सेकेंड लिस्ट आउट होगी. बट सेकेंड लिस्ट में अगर आपका नाम आया, आपको फिर कुछ रेजोल्यूशन कराना है, देन देयर इज अ विंडो ऑफ February 22nd to February 28th, which is a window between a Tuesday to Monday. You can again write an email, have a verbal communication. You can give a written application to the school and get your correction done with the school, right? अगर आपकी कोई subsequent list होती है स्कूल की तो 15 मार्च तक आ जाएगी, 15 मार्च या उससे पहले तक, और जो conclude हो जाएंगे, it means the closure of application process will be done on or before 31st of March, right? So सभी का एडमिशन जो है 31st of March से पहले conclude हो जाएगा. So I will repeat once again about the important timeline. 15th of December 2021 is the start date, which is a Wednesday. Last date to submit the form 7th of January. I will request you not to wait for last day or let's say the last week. Try and complete your form within the first week of the start of application. So आपको ये दो टाइमलाइन बहुत अच्छे से सभी को याद रखनी है. Next please. Now there are a lot of apprehensions among the parents. हम जब ये वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, you post your question and we read all the questions. So recently on 3rd of December we had a webinar and we saw the similar sort of questions जो हमारे पास इस बार आए हैं. But हमारा काम है आपको अवेयर करना सो दैट आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके और आप इस प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट कर पाए. सो जैसा मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि 3 क्लासेस के लिए नर्सरी, केजी और क्लास 1 जो है डीओई गवर्नड होती है. और इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. कुछ स्कूल इसको नर्सरी बोलते हैं, कुछ स्कूल इसको प्री स्कूल बोलते हैं. जैसा आप देख पा रहे हैं दैट more than 3 years and less than 4 years as on 31st of March 2022. यानी कि आपका बच्चा 3 साल से 4 साल तक का होना चाहिए और as on 31st of March 2022. So many schools call it class nursery, many calls it pre-school. So आपको confused नहीं होना है. This is one of the same class. Then let's talk about pre-primary, KG and prep. This is one of the same class. Some of the school calls this class as UKG, upper KG या KG, right? So again age criteria उसमें 4 से 5 साल के बीच में है. That too as on 31st of March 2022. I can see a lot of questions which parents are putting. So I will request parents to keep writing their question in Q&A section. At the end of this session or in the middle of this session, we will answer all your questions. So rest assured, don't worry about any question which is different to this course of presentation, right? Class 1 में admission के लिए जो age criteria है that is between class year 5 years to 6 years
एज ऑन 31st of March 2022। यानी कि 3 क्लासेस, 3 से 6 साल का बच्चा, 3 से 4 इज नर्सरी, 4 से 5 इज केजी एंड 5 से 6 इज क्लास 1। सो देयर आर स्कूल्स जो क्लास 1 से शुरू करेंगे, वो डीओई के हिसाब से एडमिशन लेंगे, यानी कि क्लास 1 की एप्लीकेशन दे विल एक्सेप्ट ओनली बिटवीन 15th of December and 7th of January 2022, राइट। अगर वो स्कूल नर्सरी से शुरू हो रहा है, देन वो क्लास 1 की एप्लीकेशन इस विंडो के आगे पीछे एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि 15 दिसंबर से पहले और 7th of January के बाद भी। बट अगर वो क्लास 1 से शुरू होता है, देन वो इसी स्पेसिफिक विंडो के अंडर आपका एप्लीकेशन क्लास 1 के लिए सेलेक्ट कर सकता है, राइट। नीचे भी हमने वही इसी को लाइनर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आता है एक और सवाल, द एज रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 30 days मे बी ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ द स्कूल इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट फॉर क्लास नर्सरी, केजी एंड क्लास 1। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो है एक सर्कुलर आया था डीओई की तरफ से, जिसमें डीओई ने क्लैरिफाई किया था कि 30 days का ग्रेस पीरियड जो है किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए दिया जा सकता है। बिकॉज 2019 में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इफ दे आर अप्लाइंग, और बच्चे का अगर गैप सिर्फ 1 महीने से है, सो ये डिस्क्रिशन डीओई ने दे दी स्कूल्स के हाथ में, दैट स्कूल हेड और द स्कूल प्रिंसिपल कैन डिसाइड फॉर एज रिलैक्सेशन। सो फॉर एग्जाम्पल 31st मार्च को होना चाहिए, तो इसमें आप 1 मंथ माइनस कर लीजिए एंड 31st March 2019। So basically you can subtract 1 month to the age of your kid, and you can also add on 1 month to the age of your kid. Your kid will be eligible for the admission, but this is, again I am saying, this is subjected to the approval of the principal or head of the school, because circular में बहुत clearly लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि ये जो है प्रिंसिपल की डिस्क्रिशन होगी। अब इसमें से काफी स्कूल ऐसे भी होंगे जो सभी के लिए इस एज रिलैक्सेशन को ओपन कर देंगे, बट काफी स्कूल ऐसे भी आपको मिलेंगे दिल्ली में जो बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट या बेस्ड ऑन सर्टेन एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन दे विल एक्सेप्ट योर और रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, राइट। दे विल सी द मेरिट एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिस्पोज ऑफ योर एप्लीकेशन। So now we'll move toward the next slide. I hope the age criteria is clear. If you have any doubt with respect to age criteria, now you can post question with respect to age criteria, which I will take up in a while. So the third and very, very important slide is document, because ये हमें सबसे ज्यादा apprehension होता है कि हमें क्या आधार कार्ड की जरूरत है, क्या हमें डोमिसाइल की जरूरत है, हम अगर क्या राशन कार्ड की जरूरत है, क्या पासपोर्ट चल जाएगा, क्या वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, रेंट एग्रीमेंट की क्या सैंक्टिटी है, राइट। मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूं दिल्ली में, सो हाउ द एड्रेस प्रूफ शुड बी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल होंगे जिनको मैं आंसर करूंगा 1 by 1। सो हमने इसको बहुत ही क्लियरली कैटेगराइज किया हुआ है, ABCD। आप क्लियरली रीड कर पा रहे होंगे आई एम श्योर। ABCD में ए में हमने सबसे पहले जो लिया है उसको लिया बर्थ सर्टिफिकेट। सो बर्थ सर्टिफिकेट इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिशन ऑफ योर चाइल्ड, राइट। सो बर्थ सर्टिफिकेट आपका, चाहे जो किड है, इफ दैट वाज बोर्न इन दिल्ली or that was born in any other state of India, or let's say any other country, you should have a birth certificate, a valid or issued by the competent authority। जैसे दिल्ली में आपको पता होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या और जगह इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करता है, राइट। सो आपके पास वो वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आता है बच्चे से रिलेटेड आपको सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, पिछली बार भी आए थे। क्या मेरे को अपने बच्चे के आधार कार्ड की जरूरत होगी, या बायोमेट्रिक डिटेक्ट नहीं हुआ और आधार कार्ड नहीं बन पाया तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। सो लेट मी शेयर विद यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए एज अ प्रूफ जो आप अपने बच्चे के लिए स्कूल में जमा कराएंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, बर्थ सर्टिफिकेट में आपके बच्चे का नाम इंडोर्स होना चाहिए। स्कूल चाहे तो इस बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, एंड ऑनलाइन जाके आप दिल्ली में तो एमसीडी की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 5-7 days आपका ये काम आइडियली हो जाना चाहिए, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम इंडोर्स होना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं है और आप नहीं भी इंडोर्स करा पाए,
तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? क्या आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है विद हिज नेम, नॉट एज द बेबी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस समथिंग, राइट? या मदर, बेबी ऑफ मदर एंड फादर सो एंड सो। इस तरीके से नहीं चल पाएगा अगर आप कोई, बिकॉज आपको बच्चे के नाम का आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होगा, राइट? पेरेंट का तो नाम आ गया, आप अपना कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा देंगे, बट बच्चे का नाम या तो पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो जो सपोर्ट करे। आई एम सेइंग देयर विल बी स्कूल्स हु कैन एक्सेप्ट just a birth certificate as baby of Mr. A and Mrs. B, but there are school has right to reject your application if the name is not endorsed. So it depends school to school. हम इसीलिए आपको सारी possibilities बता रहे हैं so that you are careful while applying. So अगर नाम endorse है, it will be really good for you. Endorse नहीं है तो arrange the Aadhaar card or the passport of the kid or get the name endorsed on the birth certificate of the child. So I hope that I am clear on the document A, which is birth certificate. Now let's move to B, photograph of child and parent, right? So आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए, मदर का, फादर का एंड बच्चे का। इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी कि बहुत सारे सिंगल पेरेंट हैं तो वो सिर्फ सिंगल पेरेंट का ही बेसिकली जो है फोटोग्राफ जाएगा एप्लीकेशन में और आपके बच्चे का फोटोग्राफ जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या हमें फैमिली फोटोग्राफ की जरूरत होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, while at the time of application you don't need photograph of family, but the passport size photograph of mother, father and your kid. So in the case of single parent, जो आपका single parent का फोटोग्राफ होगा वो यूज होगा। But when it will come to admission, finally जब आप मान के चलते हैं एवरेजली पेरेंट 10 स्कूल में या 15 स्कूल में अप्लाई कर रहा है, सो पेरेंट जब फाइनली एक स्कूल में अप्लाई करेगा, राइट, फाइनली एक स्कूल में एडमिशन लेने जाएगा, तब पेरेंट को अपना फैमिली फोटोग्राफ सबमिट कराना होगा। अब आता है सी सेक्शन जहां पे हम एड्रेस प्रूफ की बात करेंगे। सो एड्रेस प्रूफ बेसिकली आपका एड्रेस वैलिडेट करने के लिए स्कूल लेता है। लार्जली दिल्ली में जो है पॉइंट क्राइटेरिया हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं, बेस्ड ऑन your distance. So neighborhood criteria is a popular term that school and government promote the neighborhood criteria so that everyone should not run behind a school which is, you know, very far away from your location. So neighborhood policy was introduced by the government to promote school nearby. So आपको जो है largely school जो है 70% of the weightage जो है वो एड्रेस को देते हैं कि अगर आप 0 to 3 किलोमीटर में रहते हैं या 3 to 6 किलोमीटर में रहते हैं या फॉर एग्जांपल 6 to 10 किलोमीटर में रहते हैं तो यू विल गेट सर्टेन पॉइंट। सो स्कूल कैसे उस पॉइंट को कैलकुलेट करता है कि स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो कितना है, उसको वैलिडेट करने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। और एड्रेस प्रूफ जो कि डीओई ने अपने डॉक्यूमेंट में सर्कुलर में मेंशन किया है कि कौन कौन से वैलिड है, उसमें आपका राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड अगर पेरेंट्स का है, राइट, जिसमें मदर फादर या सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट का है, इसमें से वन ऑफ द प्रूफ चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इफ यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और हिज पेरेंट्स, देखो पेरेंट का एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ यू नो दिल्ली का कोई प्रूफ है, देन यू हैव टू गेट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट डन, अदरवाइज डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव पेरेंट्स आधार कार्ड और बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, सो डोमिसाइल इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टर्म। लास्ट टाइम भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, आप बिल्कुल भूल जाइए डोमिसाइल को। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वोटर आईडी कार्ड है या पेरेंट का आधार कार्ड है, दैट इज मोर देन इनफ which can validate your address, right? That could be electricity bill, that could be telephone bill, but in Delhi only MTNL telephone bill will be valid. No private operator bill can be considered, or school may reject if you file private operator bill as a proof of your रेजिडेंस, राइट। सो आपको मैंने ब्रॉडली बताया, इनमें से आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वी हैव अ रेंट एग्रीमेंट। सो हमें ना ये समझना होगा कि रेंट एग्रीमेंट, एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट कब होता है। सो एक रेंट एग्रीमेंट, वैलिड रेंट एग्रीमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ तभी होता है जब वो रजिस्टर्ड होता है सब रजिस्ट्रार के पास। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन
school again has right to reject, right, basis on the incorrect address proof. और डीओ स्पेसिफिकली कहता भी है कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, राइट. सो ऐसा नहीं है कि अब 15 तारीख से प्रोसेस शुरू हो रहा है एडमिशन का एंड यू आर गेटिंग डन योर रेंट एग्रीमेंट टुडे, सो विल इट बी वैलिड? माय आंसर इज नो. सो बेसिस ऑन दैट इट इज स्कूल्स डिस्क्रिशन. लार्जली अगर स्कूल के पास एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई डिमांड है, तो पूरे चांसेस है स्कूल ऐसे एड्रेस प्रूफ को रिजेक्ट कर देगा. अब बात आती है, ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो मैं यहीं पे उसको सॉल्व करना चाहता हूं सो दैट एड्रेस प्रूफ की हम बात कर रहे हैं तो ये वाली एम्बिग्यूटी अभी दूर हो जानी चाहिए. कई पेरेंट्स कहते हैं कि वी आर शिफ्टिंग एंड वी आर गेटिंग ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन दिल्ली और एनसीआर, और हमें कैसे हम एडमिशन लेंगे. तो मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रेस प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए. इट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. ये आपको वन ऑन वन स्कूल से बात करनी पड़ेगी व्हाट दे आर गोइंग टू कंसिडर, बट यू नीड एनी एड्रेस प्रूफ, चाहे वो आपके ऑफिस की लोकेशन का हो या आपने उससे पहले घर फाइनलाइज कर लिया है, वहां का आपका आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेटेड हो. यू नीड सच डॉक्यूमेंट टू वैलिडेट योर एड्रेस, राइट. अब आता है सेक्शन डी. आई होप मैंने सी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया. आपको सिर्फ एक ही आईडी प्रूफ चाहिए पेरेंट्स का, ताकि एड्रेस वेरीफाई हो जाए. सपोर्ट डॉक्यूमेंट की बात आती है. सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन. अब ये तो बड़ी ब्रॉडर टर्म है, सपोर्ट डॉक्यूमेंट में चाहिए क्या. सो लार्जली जो पॉइंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे आपके बच्चों को एडमिशन मिलता है स्कूल में, वो होता है नेबरहुड क्राइटेरिया नंबर 1, 70% वेटेज. अब बाकी की 30%, अब कई स्कूल उसको नेबरहुड क्राइटेरिया को 80% वेटेज देते हैं. मान के चलते हैं 20% वेटेज में स्कूल ने रखा सिबलिंग एज वन ऑफ द फैक्टर or one of the parameter, or let's say staff ward as one of the parameter. So while applying, आप जो भी points claim कर रहे हो as a benefit in school admission, आपको उसका support document लगाना पड़ेगा. For example, अगर आपका पहला बच्चा उस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है और आप दूसरे बच्चे को भी आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं, so आपके फर्स्ट किड का एडमिशन स्लिप या आईडी कार्ड या एडमिशन नंबर एज अ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड. If you are alumni of that school, कई स्कूल ये कहते हैं कि you must have passed out class 10th and 12th both. कुछ स्कूल कहते हैं only 10th, right, और both. या कई लोग कहते हैं अगर सिर्फ 10th भी नहीं गया, 11th में आया था और 12th पास आउट कर लिया, we will consider them as an alumni. ये स्कूल की डिस्क्रिशन है अगेन, राइट, कि स्कूल किसको कंसिडर कर रहा है एज एन एलुमनाई, और स्कूल इसको क्लैरिफाई कर देता है बहुत इजीली, राइट. सो अगर आप एल्यूमिनाई के पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं फॉर द एडमिशन ऑफ योर वार्ड, देन यू नीड टू गिव द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू आर एल्यूमिनाई ऑफ दैट स्कूल. और अगर आपने सिर्फ 12th किया और स्कूल कहता है 10th और 12th बोथ, सो अनफॉर्चुनेटली आपको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. जितना ऐसा स्कूल है जहां पे डिमांड इज वेरी हाई, राइट, एंड सप्लाई इज लेस, फॉर एग्जांपल देयर आर 5000, 4000 और 2000 एप्लीकेशन जस्ट फॉर 100 सीट्स, द क्राइटेरिया विल बी स्ट्रिंजेंट, right. So you need to be prepared with the document, but हम आपको जो process बताएंगे बहुत easy हो जाएगा आपके लिए, so you don't need to much worry on that. So if you can move next, meanwhile I'll read some of the question. So Syed Faisal का है, is domicile certificate mandatory for admission? Sir, no, if you have Aadhaar card, right, or if you have any other document proof as mentioned in this slide. Again, I need to know how the point is calculated. We will explain in the coming slide. Sir, in case of rented properties, Aadhaar card for all three, so that mother, father, and child is required. So, ma'am, if your rent agreement is registered and it is 6 months older, it will be considered as one of the address proof, right? Even if you don't have Aadhaar card, right? Aadhaar card will be supported to that rent agreement. चाहे उस आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं और का होगा, राइट, यानी कि आपके होम टाउन का हो सकता है, आपके नेटिव प्लेस का हो सकता है, राइट. बट अगर रजिस्टर्ड है और अगर अनरजिस्टर्ड है तो स्कूल की डिस्क्रिशन है वेदर स्कूल में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राइट. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल टेक एट द लेटर स्टेज. नेक्स्ट, if you can move next to the slide please. सो तब तक मैं पॉइंट क्राइटेरिया की बात शुरू कर देता हूँ. पॉइंट क्राइटेरिया जो है जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है, राइट. सो नर्सरी एडमिशन प्रोसेस
in Delhi is based on a point system. So school usually assign points to criteria like neighborhood. It means distance of your residence location from the school where you would want to apply. Okay. In the case of sibling, if the first child is going to the same school, if you are applying there, then again, school can give certain relaxation to the sibling and parents as alumni, or if you have a first child, right? Every school in Delhi defines their own point criteria on various parameters and submit that to DOE. So मैं आपको बताता हूँ, आप uniapply.com पे जाके अपना पॉइंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, DOE के नोटिफिकेशन के हिसाब से 15 तारीख को एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और स्कूल को अपना पॉइंट क्राइटेरिया जो है 14th ऑफ दिसंबर तक DOE को सबमिट कराना है. बट लार्जली जो है वो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही होता है. जो पॉइंट क्राइटेरिया होता है स्कूल हर साल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है. सो आप लास्ट ईयर का भी चेक कर सकते हैं. सो इसमें से अगर आपका कोई भी, आप जो भी क्लेम करना चाहते हैं डिस्टेंस में, तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए. सिबलिंग में आपके पास फर्स्ट बच्चे का एडमिशन नंबर या रिसीट फीस की या आईडी कार्ड जो भी स्कूल एक्सेप्ट करता है वो होना चाहिए. पेरेंट अगर एलुमनाई है तो 10th या 12th का रोल नंबर या CBSE का आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इस चीज को वैलिडेट कर पाए दैट यू आर एन एलुमनाई ऑफ पर्टिकुलर स्कूल. इन द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड दिस इज वेरी ट्रिकी. इन द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है. सो उस केस में आपको एक एफिडेविट देना होता है स्कूल को which has your oath saying that it is the kid for which you are applying is your first child, right? And at the later stage, if school find this statement as false, school can terminate the admission of your kid. So again, just an affidavit will be required in the case of first child. तो आप किसी भी डीड राइटर के पास, आपके घर के आसपास जो भी सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, SDM का ऑफिस होगा, आप वहां से जाके इसको या नोटरी पे जाके आप इसको जो एफिडेविट को है फर्स्ट चाइल्ड के केस में बनवा सकते हैं, राइट? अब आती है बात, हाउ डू वी कैलकुलेट पॉइंट. इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी थे. सो इमेजिन अ पेरेंट हैज 2 kids, राइट? एंड द फर्स्ट किड इज स्टडीइंग इन क्लास 2 ऑफ अ स्कूल A and the parents residence is 2 kilometers from the school A. This parent when applies for the nursery admission for second kid in school A will qualify to get points on the basis of following criteria. Point for residence within 2 kilometer distance. So अब मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. मान के चलते हैं 70 पॉइंट्स है नेबरहुड क्राइटेरिया की. सो नेबरहुड क्राइटेरिया में स्कूल किस तरीके से कैटेगराइज करता है? जनरली 0 to 3 किलोमीटर 70 आउट ऑफ 70. अगर आप 3 to 6 किलोमीटर में हो या 4 to 6 किलोमीटर में हो, देन 70 में से आपको 50 मार्क्स मिलेंगे. और अगर आप 7 to 10 किलोमीटर के बीच में फॉल करते हैं तो आपको और 10 मार्क्स या 20 मार्क्स कम मिलेंगे. सो इस तरीके से स्कूल ने डिसाइड किया हुआ है. 70 में से 70 मिलेंगे जब आप उनके फर्स्ट ब्रैकेट में फॉल करते हैं. अगर आप उनके सेकंड ब्रैकेट में फॉल करेंगे तो फुल मार्क्स से थोड़े कम मिलेंगे, और अगर थर्ड ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो उससे भी कम मार्क्स मिलेंगे. सो मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि आप डिस्टेंस क्राइटेरिया में आपको 70 आउट ऑफ 70 मिल रहे हैं और आपका दूसरा बच्चा भी उसी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है, यानी फर्स्ट किड, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 90 पॉइंट्स. अगर 10 पॉइंट किसी और क्राइटेरिया के लिए रिजर्व है, सो देयर विल बी वेरी हाई पॉसिबिलिटी फॉर द एडमिशन ऑफ योर किड. यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्लैरिफाई कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में 2000 एप्लीकेशंस आती हैं, राइट, और 100 सीट्स हैं. अब बेस्ड ऑन द पॉइंट सिस्टम, ये जो नीचे हमने एक क्राइटेरिया दिया हुआ हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट, जिसमें जो फॉलोइंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, मान के चलते हैं कि 20 पेरेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं फॉर 100 सीट्स, तो 20 पेरेंट्स का नाम लकी ड्रॉ में नहीं जाएगा बिकॉज उन 20 पेरेंट्स की सीट्स रिजर्व है. दे हैव अचीव्ड 90 पॉइंट्स आउट ऑफ 100, राइट? ड्रॉ किसका होगा? यानी कि उससे नीचे वाली कैटेगरी का, जिस स्कोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन में टाई होगा, यानी कि 80 मार्क्स पे अगर 600 एप्लीकेशन है तो ड्रॉ में उनका नाम जाएगा. उन पेरेंट्स का नाम नहीं जाएगा जिनका हाईएस्ट स्कोर है, इफ दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स, राइट? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. 100 सीट्स है और 20 पेरेंट्स के हाईएस्ट मार्क है, उनका तो स्कूल लिस्ट में नाम ही नहीं देगा बिकॉज वो सिर्फ उसी लिस्ट में डिस्प्ले करेगा कि पेरेंट्स का स्कोर कितना, उस कैंडिडेट का स्कोर कितना है एंड उसका सीट रिजर्व है. बाकी की जो 80 सीट्स है उसके लिए लकी ड्रॉ होगा
और उसमें जिनका भी टाई हो रहा होगा उन्हीं पेरेंट्स का एप्लीकेशन नंबर डाल के चिट सिस्टम या स्कूल जैसे भी अपना लॉटरी या लकी ड्रॉ करता है उस प्रोसेस को स्कूल ऑन करेगा. वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. मीनवाइल आई कैन टेक सम ऑफ द क्वेश्चन. गौरव जैन ने पूछा है that I myself I want to ask you about the document required for the adopted child. Sir, जो legally आपने adoption का आपके पास document होगा, that can be considered as a valid document. जो भी आपको competent authority से, government authority से issue हुआ होगा, because उसमें बच्चे का नाम और parent का नाम, चाहे single parent है, चाहे mother father दोनों है, दोनों का mention होगा, या single parent के केस में single parent का mention होगा. You can use that as a valid document. Swati Agarwal saying is only Aadhaar card is sufficient proof in case of rented property. If you have the Aadhaar card of particular property from where you are claiming the score of neighborhood criteria, that is valid. Otherwise, see, it is very simple. You require the document of particular place where you are residing and you are claiming the neighborhood score for a particular school. Then we are Sugandha ji ka ek question hai, what are the best school in RK Puram? Ma'am, you can go to uniapply.com, you can select popular areas RK Puram, you will be able to see all the school. Is Aadhaar card compulsory for nursery admission? So Nitesh ji, मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड मैंने क्लियरली बताया है कि ABCD में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम to give the link of the blog, जहाँ पे काफी सारे चैट बॉक्स में, जहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन जो है पेरेंट्स के आंसर हो जाएंगे. सो आधार कार्ड बच्चे का इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पेरेंट का इंपॉर्टेंट है. आपको एक ना एक एड्रेस प्रूफ वैलिडेशन के लिए देना होगा, राइट? सो then we will go for next question. Only points are the criteria for selection. रीमा बंसल जी का क्वेश्चन है. रीमा जी, मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल्स के पास ब्रॉडर जो है पॉइंट सिस्टम से ही स्कूल लेता है एडमिशन. जिन स्कूल के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होंगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन ले लेगा. बट लार्जली दिल्ली में स्कूल जो है पॉइंट क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, राइट? मैं 2 लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन विल पिक अप ऑल द क्वेश्चन. EWS के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि EWS के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे. उसका नोटिफिकेशन के लिए आप DOE की वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं. मैम, हम कोई भी इसके लिए डेट कमिट नहीं कर सकते. सो भरत जोशी जी का क्वेश्चन है, KG और UKG आर द सेम ग्रेड? यस सर, दिस इज द सेम ग्रेड. It depends what school calls it, whether KG or UKG in their internal ecosystem, right? How can we apply in the management quota? Is it applied if the name does not come into the general category? It's a very tricky question. You can directly get in touch with the school for this, because management quota is the 100% discretion of the school. You can give a written application to the school and you can check on that. Ritesh, in addition to this, Megha ma'am has asked about the passport. Like, is passport is required at the time of admission if they don't have any valid address proof? So could you please just take it up? Yes, thank you Ayushi for bringing the question of Miss Megha. So मैं बता देता हूँ इसमें क्लियरली, अगर आपके पास कोई और एड्रेस प्रूफ नहीं है तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि इसको गवर्नमेंट इशू करती है पासपोर्ट को. अगर पासपोर्ट पे आपका वही एड्रेस है जहां से आप क्लेम कर रहे हैं नेबरहुड क्राइटेरिया को, देन इट इज वैलिड, राइट? इन केस ऑफ एड्रेस अलग है जहां से आप पॉइंट क्राइटेरिया यानी कि नेबरहुड के मार्क्स को क्लेम कर रहे हैं, then you need to have the address of a particular residence जहां से आप क्लेम कर रहे हैं, राइट? अगर आधार कार्ड पे लोकेशन A का है और आप लोकेशन A से स्कूल में अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन इट इज कंप्लीटली वैलिड. बट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नाम नहीं है, तब उस केस में बच्चे का पासपोर्ट या आधार कार्ड चाहिए होगा. अदरवाइज ना ही आधार कार्ड की जरूरत है बच्चे के एडमिशन के लिए, ना ही पासपोर्ट की जरूरत है. सो Ayushi, is there any other question which I can take before Swami starts his journey? So Ritesh, we have a lot of questions. I would say that we can all answer these questions once we are in with the slides, right? And we'll take it up. Fair enough, Swami. So thank you, Ritesh, and of course you have given us the detailed information about the
DOE guidelines and the process, and of course बहुत सारे parents को यहाँ पे clarity मिली होगी कि what information or what guidelines that they have to abide with at the time of admission. So definitely Ritesh, जो आपने बताया कि if I say that जो admission process होता है, it is full of anxiety. जब admission process start होता है, parents of course get the lot of anxiety in their mind कि मेरा बच्चे का admission कब होगा, कैसे होगा, किस school के अंदर होगा, मुझे क्या process follow करना होगा. And definitely if I talk about it is a kind of a battle for a parent. The period of 1 month or 2 months, it becomes a battle for a parent, and of course it gives a sleepless nights to a parent also sometimes. And of course with the conventional method, if I talk about it's every parent want to give the best to their child. हर parent चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े with the best of the information और with the best of the education they can get. So definitely उसके ऊपर parents अपना homework करना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने पहले ही. Mothers or other father, they start going ahead with the different schools information. वो अपने school के बारे में, अपने nearby schools के बारे में search करना शुरू कर देते हैं. And then of course they find out the various documents कि school का क्या documents चाहिए, क्या admission criteria है, क्या basically उसको certificate चाहिए होगा. So overall it becomes a tedious process for a parent. And of course like I'm just reiterating, it is a kind of a battle for a parent, right? So definitely there are a lot of things that parent have to keep in mind once they are just applying to any specific school, right? उसकी fee क्या है, उसका offline form है, उसका online form है, right? बच्चे का आधार कार्ड कैसे लगेगा, parent का आधार कैसे, all those questions we can see right now that हम जो questionnaires में देख रहे हैं. So definitely these are the challenges that we see that parents go ahead and they face all these challenges. And at the end once the admission dates come, parent अपने admission का process follow करते करते at least 1-2 महीने लगा देता है. And definitely later on वो अपने supporting documents के बाद वो go ahead and they make the fee, rather they go ahead and they deposit their forms, and then lately the their wait of getting the call from a school starts. As in if I talk about that, they wait for the call कि अब इस स्कूल से कॉल आएगा, and it's more of anxiety that it comes in their mind कि अब ये कैसे होगा. So till the time जो ये 1 महीने का process होता है, it is very very tedious for a parent, right? So it is a very conventional method that we've been following it from last years or decades that we are talking about, that यही मुझे एक process follow करना है, right? So definitely as UniApply, if I'm talking about UniApply ने क्या किया, UniApply has come to a given a platform to a parent, जहाँ पे UniApply ने एक parent और एक school को जोड़ दिया इकट्ठा, and एक ही platform पे दोनों को इकट्ठा कर दिया, and now parent can go ahead and parent can simply get all the information about the schools on one platform. Aisha, if you can come to the next slide. So on UniApply, if I say that on UniApply there are more than 500 schools to apply for in Delhi, and parent can simply go ahead and they can look at the schools, and they can आप लोग UniApply पे जाकर different schools की information consume कर सकते हैं. और like as I said कि on UniApply there are more than 500 schools to apply for, तो आप अपने nursery admissions को बहुत easily process कर सकते हैं. So अभी normally आपको क्या करना है, आपको simply एक uniapply.com पे जाना है. UniApply, it's a very easy portal to go for. आप अपने uniapply.com पे जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एज अ पेरेंट. वहाँ पे एक सिंपल कॉमन फॉर्म है हर पेरेंट के लिए. सबसे बड़ी बात है जो पेरेंट को एक हैसल होता है कि हर स्कूल का अपना अपना एक फॉर्म होता है. सो इट इज अ पेन एरिया जहाँ पे हमने देखा कि पेरेंट चाहता है, पेरेंट देखता है, तो आप एक कॉमन फॉर्म भरिए UniApply के ऊपर. सिंपल आप UniApply के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, अपने स्कूल की फीस को पे करिए जो 25 रुपए है फॉर डेली स्कूल्स, अपने स्कूल आइडेंटिफाई करिए और सिंपली वहां पे जाके अप्लाई कर दीजिए. अब बेस्ट पार्ट ऑफ आपको क्या है कि आपको स्कूल के लिए वेट नहीं करना कि आपको स्कूल क्या रिस्पॉन्स देगा. आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही UniApply के प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर सकते हैं, और जब स्कूल कुछ जाकर अपना एनरोलमेंट मार्क कर देगा तो आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर एनरोलमेंट भी दिखेगा कि स्कूल ने आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है. So overall if I say that UniApply is giving you that platform कि आप एक UniApply पे आकर different schools को information को आप
जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एंड जाके आप यूनी अप्लाई के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Can you come to the next slide? So now Ayushi will go ahead and Ayushi will simply give you a information that how you can go ahead and how you can just navigate on uniapply.com and how you can go ahead and how you can apply through UniApply website. So before Ayushi starts, I would take some of the question which I found quite interesting from parents, and it is very, very important to answer some of the question because that could be the common answer for a lot of parents, right? इसमें ना पेरेंट्स के बहुत ही बेसिक सवाल है, जैसे कि यूनी अप्लाई पे एक अरिंदम जी कह रहे हैं कि यूनी अप्लाई पे मैं गया, मेरे को नर्सरी क्लास नहीं दिख रही है, सो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वहां पे तो क्लास 1 के एडमिशन ही दिखाई दे रहे हैं. तो अरिंदम जी मैं आपको बता देता हूँ, क्लास नर्सरी के एडमिशन 15 दिसंबर से पहले ऑन नहीं हो सकते. 15 दिसंबर को ही ऑन होंगे. ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं. तो आपको क्लास नर्सरी का जो टैब है वो ऑन दिखेगा 14 दिसंबर की रात को 12 बजे से वो टैब ऑन हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव 15 दिसंबर, राइट. 15 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक वो टैब ऑन रहेगा. सो इसीलिए आपको अभी क्लास 1 के एडमिशन का टैब ओपन दिखाई दे रहा है. जिस स्कूल में क्लास केजी में होता है उसमें क्लास केजी का ऑफ होगा और क्लास 1 का दिखाई दे रहा होगा, राइट. सो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है. आप यूनी अप्लाई पे, ये सभी पेरेंट्स के लिए मैसेज है, आप क्लास नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको 15 तारीख से दिखाई देने लग जाएगा नर्सरी का टैब ओपन. अब बात करते हैं, रुचिका जी का एक क्वेश्चन था दैट हाउ मेनी स्कूल वी शुड अप्लाई. सी इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ अ पेरेंट, बट इन जनरल you should apply for as many school as you can in your area from 3 to 6 kilometers, or let's say 0 to 6 kilometer. You should apply to maximum schools, right? You should keep your option open for your kid, right? मान के चलते हैं कि आपने सिर्फ 2 स्कूल में अप्लाई किया और क्या हुआ अगर उस 2 स्कूल में आपका नंबर लॉटरी में नहीं आया, अगर आपका पॉइंट में टाई है और आपका नंबर नहीं आया, in that case it will be a risky situation. So it is I cannot say a number, Ruchika ji, but it's a very subjective statement that you can apply to as much school as you want, right? Third, एक जय जी का एक क्वेश्चन है दैट ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है उनके पास, तो ये कितना वैलिड है. पिछले कई सालों से ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं, सो वो कंप्लीटली वैलिड होता है, राइट, क्योंकि म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है स्कूल को उसको वैलिडेट करने का ऑप्शन भी देती है. सो स्कूल उस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर लेता है जो गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं. रितिका जी का एक सवाल है कि बर्थ सर्टिफिकेट में फादर के सरनेम में एरर है, तो मैम मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि अभी भी काफी सफिशिएंट टाइम है, यू कैन गेट इट करेक्टेड, राइट. अगर आपके पास बच्चे का कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है टू सपोर्ट हिज एंड फादर मदर्स नेम, बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए हर केस में, बट अगर उसके अलावा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो यू कैन गेट दिस करेक्टेड. अब दृष्टि जी का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमने वाइल एप्लीकेशन तो अपलोड कर दिए सारे डॉक्यूमेंट, बस इसका वेरिफिकेशन कब होता है. सो जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जब एडमिशन की बारी आएगी आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे. मान के चलते हैं अगर किसी भी पेरेंट ने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया या कोई ऐसा क्लेम किया जिसके लिए वैलिड प्रूफ नहीं है, स्कूल हैज कंप्लीट राइट टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. सी हमारा पर्पस आपको डराना नहीं है, बट आपको एजुकेट करना है सो दैट आप टाइमली अपने सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट अरेंज कर पाए और उसको टाइमली, इनफैक्ट आप यूनी अप्लाई पे जाके अपना एक प्रोफाइल, जैसे स्वामी ने आपको बताया कि आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म भर के रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे अरेंज कर सकते हैं, सो दैट when it comes to the 15th of December you can quickly apply to the school, right? So ये questions जो थे common question थे. और एक और लास्ट क्वेश्चन जो मैं लूंगा, 5+ का बच्चा है अभी तक एडमिशन नहीं कराया, सो वो जिस क्लास के लिए, नहीं कि क्लास 1 के लिए एलिजिबल है, कई पेरेंट्स ने बोला कि हम लास्ट ईयर नर्सरी में नहीं करा पाए, अगर बच्चा 4 से 5 साल के बीच में है यू कैन अप्लाई फॉर केजी, और इफ इट इज बिटवीन क्लास 1 if it is between age of year 5 to 6 then you can apply for class 1. और क्लास 1 के लिए तो काफी स्कूल के एडमिशन जो है वेरी सून इट विल स्टार्ट, और काफी स्कूल ने अपने एडमिशन ओपन भी कर दिए. जैसे द्वारका में देयर आर मेनी स्कूल व्हिच हैज ओपन देयर एप्लीकेशन एट यूनी अप्लाई,
right? Over to you, Ayushi. Meanwhile, I'll read more question and I can answer after your session. So thank you so much, Ritesh. I hope that all the queries related to Delhi admissions related to DOE, it has been resolved by Ritesh till now. And I would also like to thank Swami for letting us understand about the journey of the parent, right? कि parent की एक basic journey क्या होती है while applying for schools during the Delhi admissions. So as Swami has clearly mentioned that parents can apply for Delhi schools by filling just a common application form through Uni Apply, and then they can use that same form to apply for multiple schools as much as they want to apply for. So I'll just quickly share my screen. So all you need to do is that you need to just go on uniapply.com. So you will be landed on this page, jahan par you need to select your city first of all. Like let's consider that I'm a Delhi parent. So I'll choose my city as Delhi, and I'll go on explore schools. तो यहाँ पर मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंगली मेरी लोकेशन के जितने भी स्कूल्स हैं नियर टू माय लोकेशन, ये सारे स्कूल्स मुझे दिखने लगेंगे. Now let's suppose if I want to apply for let's suppose Pragati Public School for my child. So I'll go on this particular Pragati Public School. यहाँ पे एक add to apply का option है. Let's suppose if I want to apply for class 1, मुझे class 1 के लिए अपने बच्चे के लिए apply करना है. I'll click on this add to apply. I'll submit this since I'm the registered user. तो ये मेरा child है जिसके लिए मैं apply करना चाहती हूँ. I'll submit it. Similarly, if I want to add more schools into my cart, so I can just add those schools in my cart and I'll proceed with the payment. The moment I'll make the payment, then I will be redirected to the common application form. So ये मेरा एक common application form है जो after making the payment for all my wishlisted schools जिनके लिए मुझे apply करना है अपने बच्चे के लिए, once I'll make the payment, I will be redirected to this common application form. यहाँ पर you can see that we are asking for the very basic details about the child details. Let's suppose so these are the details that we are asking to the parents, जो हर स्कूल की एक basic detail होती है, हर स्कूल during the time of admission मांगता ही है. So the second is आपको अपना पेरेंट एंड गार्जियन डिटेल्स भरना होता है, मदर एंड फादर की बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है. एंड द नेक्स्ट इज आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है. As Ritesh has already mentioned that Delhi admissions they majorly focus on the distance and the address and all thing. So यहाँ पर आप अपना basic address जो भी आपका correspondence address है आप वो डालते हैं. And then the last page आप अपने जो भी required documents हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं. Let's suppose child का photograph, बच्चे का birth certificate. So all the required documents you will be uploading in the last page. And then so basically this is the common form जो आपको भरना होता है after making the payment. And there comes the additional details. So as Ritesh has mentioned कि हर स्कूल अपने accordingly कुछ specific parameters पे कुछ points allocate करता है. So for each and every school आपको ये points के answer करना होता है. Like for whether जिस भी स्कूल के लिए आप apply कर रहे हो स्कूल में आपका sibling है या नहीं. For that matters अगर उस स्कूल के लिए आप apply कर रहे हो वहां पर आपका कोई alumni है या नहीं. And then आप जैसे ही ये सारी details भरते हो, it will ask you to preview the application and then it will ask you to submit the application. Right? Now जैसे ही आप अपना application submit करते हो, so यहाँ पर जैसे let's suppose I have already submitted the application for my child Swati Gupta for class 1. So this is my dashboard जहाँ पर even after submitting the application I can track all of my applications कि मेरी हर एक application का क्या status है. Right? So
For Swati Gupta as my child, यहाँ पर आप देख सकते हैं that I have applied for class 1 for session 22-23. I have successfully made the payment and my form is 100% completed, and I have successfully submitted the form as well. And here that school has updated my stage that my child has shortlisted for parent and child interaction or interview for that matters. सो ये जो आपका एप्लीकेशन का जो पोस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग आपका जो स्टेटस होगा वो आफ्टर 7th of January school will start reviewing your application, and meanwhile they'll start updating your application status according to your candidature. And on the same time real time के बेसिस पे आपका ये स्टेटस आपके डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होने लगता है. सो दिस इज फॉर द स्वाति गुप्ता जो मेरा बच्चा है उसके लिए मैंने अपना पूरा आई कैन एक्सेस माई एप्लीकेशन स्टेटस अबाउट इट. Now obviously we like most of the parents must be wondering कि ये obviously मैंने अपना application तो भर दिया है uni apply के through, but how school is going to take the action on my application. तो as simple as that, जितना प्रोसेस यहाँ पर एज अ पेरेंट्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट एंड बिल्कुल आसान है, तो सेम पेरेंट्स के पास क्या होता है, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेट्स सपोज 15th of December से जैसे ही हमारा दिल्ली एडमिशंस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, द मोमेंट यू स्टार्ट सबमिटिंग योर एप्लीकेशंस टू द रिस्पेक्टिव स्कूल्स के पास भी एक डैशबोर्ड होता है जहां पर स्कूल्स आपकी उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे होते हैं. So after 7th of January, जब ये application window बंद हो जाएगा, once the school will start reviewing your application, they'll start updating the status and same will be reflected on your dashboard itself. So that is how this entire process work, कि कैसे आप एक common form के through with just a small steps, with just a few steps, आप वो पूरा application भर सकते हैं and you can apply for multiple schools, as much school as you want to apply for. So, Ritesh, if you want to add something. Yeah, see, what we mean to say here, or Ayushi wanted to clarify that if you want to stop haggling between one to another school, visiting 10 different school, filling 10 different applications. See, मैं इसको बहुत clearly आपको बताता हूँ कि अगर आप minimum 10 school के लिए apply कर रहे हैं और आप 10 application form भरते हैं, so it is going to take एक फॉर्म ऑन एन एवरेज 4 hours लेगा, राइट? और आप लगा लीजिए into 10 comes to 40 hours, और आप ये एक ही 24 घंटे तो पूरे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. सो द इजीएस्ट वे इज टू फिल द कॉमन फॉर्म एट यूनी अप्लाई एंड अप्लाई टू मल्टीपल स्कूल. यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हर स्कूल का पॉइंट क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. जैसा कि मैंने आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बताया कि हर स्कूल का पॉइंट क्राइटेरिया अलग होगा. तो कॉमन फॉर्म एक आपको भर के रखना है जो सभी स्कूल में काम आएगा, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए 20 स्कूल एक साथ सेलेक्ट किए, 20 स्कूल ऐड टू अप्लाई में जाके, और आपने उसका पेमेंट कर दिया ऑन यूनी अप्लाई. दिस इज स्टेप नंबर 1. नाउ one by one you can submit the application to the school on the website, right, at uni apply only. So trust me, it will take down your effort to 80%. If you are doing it traditionally or conventionally, like Swami rightly mentioned in his presentation, then it is going to take a lot of hours. And according to that, if you use uni apply, it will reduce 80% of your effort. One single form, 20 स्कूल आपने select, वो फॉर्म भरा, 20 स्कूल एक साथ सेलेक्ट किए, आपने पेमेंट करी. पेमेंट करने के बाद आप 1 by 1 फॉर्म को सबमिट करेंगे. अब 1 by 1 क्यों सबमिट करना है ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर स्कूल का पॉइंट क्राइटेरिया जो है अलग होता है. कुछ स्कूल 0 to 3 किलोमीटर में 70 मार्क्स दे रहे होंगे, बट कुछ स्कूल 0 to 3 किलोमीटर में 90 मार्क्स दे रहे होंगे, राइट? सो हर स्कूल का पॉइंट क्राइटेरिया अलग होता है, इसलिए आपको उस सेक्शन को हर स्कूल के लिए अलग अलग आंसर करना होगा. इसलिए कॉमन फॉर्म इज पार्ट ए और पॉइंट क्राइटेरिया is part B. So part A is common for all the school, इसलिए submission 1 by 1 होगा. So part A is common for everyone and part B will be different, जो आपको अलग अलग submit करना पड़ेगा on uni apply, but significantly it will take down your effort as compared to the conventional method. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आर सिबलिंग क्राइटेरिया में क्या cousins consider है? No, it has to be real brother or sister. ओके उसी केस में अगर दोनों बच्चे आपके हैं, पेरेंट्स का नाम जो है सेम होना चाहिए. कजन्स का केस जो है वो वैलिड नहीं होता है, राइट?
एक पेरेंट ने, अमितेश गुप्ता जी ने पूछा है व्हाट इज द सपोर्टेड सर्टिफिकेट फॉर डिस्टेंस पॉइंट। सर आपका जो भी एड्रेस प्रूफ होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट इशूड, वो कंसिडर होगा एज आपका वैलिड प्रूफ फॉर कंसिडरिंग योर पॉइंट्स, राइट। कुछ पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि हम अप्रैल में शिफ्ट होंगे, बट यू नीड टू हैव एनी डॉक्यूमेंट, लाइक आई सेड आपके पास करंटली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। अखिलेश रौनक जी का एक क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग इन दिल्ली बट शिफ्टेड येट ड्यू टू कोविड सिनेरियो, प्लीज गाइड मी। सी, अगर आपके पास दिल्ली का प्रूफ है आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन द classes are going to start, you can come and send your kid to the school, or if it is online at any place you can take the classes. But अगर स्कूल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है देन आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को एक और किस्सा याद आया लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर यूनी अप्लाई पे ऑलमोस्ट 600 स्कूल्स ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए थे, राइट। सो उसमें से मेरे को टॉप ऑफ माई माइंड देयर आर ओनली 2 स्कूल विच आस्क्ड फॉर द हार्ड कॉपी फॉर्म वंस यू अप्लाई ऑनलाइन। सो जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल पेरेंट को प्रिंट आउट लेके ना बुलाएं स्कूल, बट इफ इन केस बुलाते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाके फॉर्म का प्रिंट लेके स्कूल में दे सकते हैं। अदर इस केस में आपको स्पेसिफिकली नोट्स में मिल जाएगा और कम्युनिकेशन स्टेज में आपको मिल जाएगा दैट यू नीड टू सबमिट योर हार्ड कॉपी फॉर्म। अदरवाइज अगर आपने यूनी अप्लाई पे पेमेंट कर दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया, इट हैज गॉन टू द स्कूल, यू नीड टू बी रेस्ट अश्योर्ड आपका फॉर्म स्कूल में सबमिट हो गया, आपको 10 स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 2 घंटे में आप 2 घंटे में, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेस देन 1 आवर यू कैन सबमिट एप्लीकेशन टू 20 स्कूल, राइट। क्योंकि कॉमन फॉर्म में आपको हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स आपको लगेंगे टू अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड 5 मिनट्स टू अप्लाई एंड मेकिंग पेमेंट। दैट्स ऑल इट्स रिक्वायर्ड। सो वी हैव रिड्यूस्ड the hard work or the effort significantly as compared to the conventional method. So आपको ये कोशिश करनी है आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में अप्लाई करें और ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन जो है वो बढ़ जाए। और यूनी अप्लाई ने बहुत ही इजी आउट आपको ऑप्शन दिया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको 10 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्म जो है काम कर जाएगा आपका, राइट। सुमित सौरभ जी का एक क्वेश्चन है, माय डॉटर इज 4 years old नाउ, हाउ टू एनरोल हर इन नर्सरी। सो सर देखिए, आप टेक्निकली एलिजिबल हैं क्लास केजी के लिए, सो आप क्लास केजी में अप्लाई कीजिए। उसके अलावा आप स्कूल को रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं। देखिए, अगर 3 से 4 साल के बीच में है, इफ 4 year old है, 4 से ज्यादा नहीं है, 4 प्लस नहीं है, अगर सिर्फ एज ऑन 31 मार्च में 1 महीना ऊपर है, राइट, देन यू कैन इवन अप्लाई फॉर नर्सरी, आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है आप केजी में अप्लाई कर लीजिए, उसके अलावा आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर लीजिए। If school will be in a situation to consider as per the DOE norms, school will consider, right? It is the discretion. So in addition to this, Jyotika ma'am has asked ki where can she track her application, if she can track her application on school's website, if though she has applied from uni apply, is it possible? So Ayushi, you answered this question, though I will repeat this for ma'am. So ma'am, if you are applied through uni apply and school changed the stage of the application, so there are several stages before you you have been granted the final admission. So इसको प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहले आप स्कूल यूनी अप्लाई पे गए, एक बार जर्नी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आप www.uniapply.com पे आज से ही जाना शुरू कर सकते हैं। आप जाके अपना जिस स्कूल में आप डिजायरेबल स्कूल है उसको शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं, राइट। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जिस दिन एप्लीकेशन विंडो खुलेगा आप पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप कर देंगे, 7th तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 7th के बाद आपको अगर स्कूल अपना कम्युनिकेशन स्टेज चेंज करता है, बिकॉज आपने यूनी अप्लाई पे अप्लाई किया और ये एप्लीकेशन डायरेक्टली स्कूल के पास रियल टाइम पे चला जाता है। जैसे यहां से हमने किसी को व्हाट्सएप भेजा और सामने वाले को रिसीव हो गया, इतना ही रियल टाइम में आप जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करते हैं स्कूल के पास चला जाता है। स्कूल जैसे ही उसको एक्शन पे क्लिक करके जो भी कम्युनिकेशन स्टेजेस होती हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टेजेस हैं, योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, यू हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अपर क्लासेस में देयर आर इंटरैक्शन, देयर आर टेस्ट, राइट। सो वो स्कूल अपना एप्लीकेशन स्टेज चेंज मार्क करेगा एंड आपको वो एप्लीकेशन स्टेज आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगी, आपको SMS आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। अगर आप बार बार डैशबोर्ड नहीं चेक कर सकते,
आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, आप आपका नंबर दीजिए, उस पे आपको सिस्टम जनरेटेड एसएमएस और ईमेलर आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। आप जब भी यूनी अप्लाई से अप्लाई करेंगे और स्कूल का फॉर्म सबमिट करेंगे यूनी अप्लाई के थ्रू, आपको व्हाट्सएप पे आपका फिल्ड फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको व्हाट्सएप पे फिल्ड फॉर्म और रिसीट आ जाएगा, विच यू कैन यूज एज अ डॉक्यूमेंट, राइट। अगर आप स्कूल जाते हैं, आपके पास प्रिंट कॉपी नहीं है, यू कैन शो एंड क्लिक ऑन द व्हाट्सएप एंड यू कैन शो योर एप्लीकेशन। सो यूनी अप्लाई ने बेसिकली इतना ट्राई किया है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली ईज आउट हो जाए, जितने भी हैसल्स है वो दूर हो जाएं, और हम आपको एंड टू एंड आपको हेल्प कर पाए विद द एडमिशन प्रोसेस। और इस टाइप के वेबिनार जो हमने 3rd को किया था, और एक रीमा बंसल जी हमारी लास्ट टाइम व्यूअर थी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑफिस आवर्स में ना करके शाम को कीजिए। सो वी आर ट्राइंग टू अकोमोडेट all the request of our viewers and the subscribers so that they can actually take the full advantage of such master class where we help parent to understand the complete and end-to-end process about nursery admission. So Ayushi, if there is any question which I am missing. Ritesh, I just want to talk about pertaining to the document verification. There is a question Mr. Akash Bhatnagar ji ने पूछा है, do uni apply also verify documents and intimate us before सबमिशन टू स्कूल? सो इसका वेरी सिंपल सा आंसर मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉमन फॉर्म भरना है। आपको उस कॉमन फॉर्म के बाद सिर्फ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, आपने जब कॉमन फॉर्म सेव करके आपने वो स्कूल में अप्लाई कर दिया, माई डैशबोर्ड के ऊपर जब आपको स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और वो जस्ट स्कूल वहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। सो देयर इज नो एज सच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन बाय uniapply.com। सो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट ईयर हम नर्सरी में एडमिशन नहीं करा पाए, क्या हम इस साल केजी में करा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप उस एज ब्रैकेट में आपका बच्चा है, यू कैन अप्लाई फॉर केजी। पेरेंट का एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट चाइल्ड के केस में एफिडेविट नोटरी बहुत इजीली बना देता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो एफिडेविट बन जाता है। फॉर्मेट नोटरी के पास या एसडीएम ऑफिस के पास जो भी इस टाइप के डीड राइटर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दे हैव द फॉर्मेट एंड इट कैन बी इजीली प्रिक्योर्ड, राइट। यू कैन गो एंड गेट इट डन एंड यू कैन सबमिट टू द school. Then there is another question, will there be any format for making affidavit? Again the same question I have answered. और ये multiple parents का है with respect to affidavit, so it's very easy, you don't need to worry about, right? अमित अब्बास जी का क्वेश्चन है, can you confirm the distance criteria, is it 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर? सो अमित जी, ये डिपेंड करता है कि स्कूल क्या पॉलिसी लेके आता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आपको ऐसे भी स्कूल मिलेंगे जो 0 to 10 किलोमीटर में 80 आउट ऑफ 80 देंगे और बाकी 10 मार्क्स रखेंगे सिबलिंग के लिए और 10 मार्क्स रखेंगे एल्यूमिनाई के लिए, राइट। ऐसे केस में ये कंप्लीट सर स्कूल की डिस्क्रिशन है। डीओई बस ये कहता है कि यू हैव टू कीप लार्जर पोर्शन ऑफ योर एडमिशन क्राइटेरिया एज नेबरहुड, राइट। अब यहाँ पे इसको कैसे बाइफरकेट करना है कि 0 to 3 किलोमीटर वाले को ज्यादा मार्क्स देने हैं या 0 to 6 किलोमीटर वाले को देने हैं या 0 to 10 किलोमीटर वाले को देने हैं, ये कंप्लीटली स्कूल का डिस्क्रिशन है सर, राइट। और मैं क्वेश्चन क्विकली पिकअप करता हूं, विच स्कूल्स, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स? सो जब भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मनीषा साहा जी है, ये हम सभी प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन जो है उसका प्रोसेस अलग है और वो आपको डीओई की वेबसाइट से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं या वहां पे आप उसकी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे लार्जली बात कर रहा हूँ 50+ 25% और 20% जो भी स्कूल का मैनेजमेंट कोटा है, हम उस लार्जर पोर्शन की बात कर रहे हैं। भावना जी का भी जो क्वेश्चन था वो एफिडेविट से रिलेटेड था, जो कि हमने लाइव आंसर कर दिया है। हाउ मच पॉइंट्स आर असाइंड टू ईच क्राइटेरिया? सो वरुण तलवार जी का क्वेश्चन है कि कितने पॉइंट्स जो है क्या अलग अलग क्राइटेरिया को अलॉट होते हैं। सर इसमें पॉइंट क्राइटेरिया में मैं सभी को बता देता हूँ, डिस्टेंस एज अ क्राइटेरिया रखना सभी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है। स्कूल चाहे तो 100 मार्क्स पूरे डिस्टेंस को अलॉट कर सकता है, स्कूल चाहे तो उसको मिनिमम 70% डिस्टेंस को रख के बाकी में 2 क्राइटेरिया और डाल सकता है, सिबलिंग, एल्यूमिनाई, फर्स्ट चाइल्ड एक्सेट्रा। कुछ लोग कुछ स्कूल जो है दिल्ली में, वो सोशल कॉज आपने अगर कुछ किया है उसमें वो डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, राइट। तो इस टाइप का पॉइंट क्राइटेरिया होता है। लार्जर सेट गोज टू द डिस्टेंस और द नेबरहुड क्राइटेरिया एंड द स्मॉलर सेट गोज टू फर्स्ट चाइल्ड इन जनरल, फर्स्ट चाइल्ड, एल्यूमिनाई एंड सिबलिंग, राइट।
So point criteria is school's discretion. So basically एक और question आया है हरितमा दास, Mr. हरितमा दास. So basically he has asked like how to make a payment on UniApply for each and every school. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनी अप्लाई के थ्रू आपको एक एक स्कूल्स के लिए इंडिविजुअली पेमेंट नहीं करना है. जितने भी स्कूल्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू ऐड दो स्कूल्स इन योर कार्ट एंड कोई लिमिटेशन नहीं है. आप जितने भी स्कूल्स उस कार्ट में ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द पेमेंट इन अ वन गो, इन अ वन सिंपल गो. आप उन सारे स्कूल्स का एक बार में पेमेंट कर सकते हैं and then later on you will start filling your common application form and then start submitting the form to the each and every school जिसके लिए आपने पेमेंट कर रखा है. इसमें ऐड ऑन कर देता हूं. जैसे आप किसी भी ऐप पे जाके कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो आप एक साथ कार्ट में ऐड कर देते हैं सारे प्रोडक्ट एंड देन यू प्रोसीड टू पेमेंट. सिमिलरली यू कैन ऐड as many school as you want and in one go you can make the payment by using debit, credit, or debit, credit card, net banking, or any of the wallet like Paytm or any of the wallet. If you are using UPI ID, you can make the payment. So it is very, very convenient. Now number 2, the form will be submitted one by one. So आप एक ही बार ऐड करके पेमेंट किया, then one by one आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया. गौरव कौशिक जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज डिस्टेंस कैलकुलेटेड. ये अगेन स्कूल की डिस्क्रिप्शन है. काफी सारे स्कूल, लार्जली दिल्ली में स्कूल जो है वो डोर टू डोर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि स्कूल के गेट से लेके उस पर्टिकुलर रेजिडेंस यानी कि पेरेंट के रेजिडेंस में कितना डिस्टेंस है, मैक्सिमम स्कूल उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. बट देयर आर फ्यू स्कूल हु कैलकुलेट स्कोर बेसिस ऑन द एरियल डिस्टेंस, राइट. यानी कि एयर डिस्टेंस क्या है, बिकॉज दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. थर्ड होता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल राजेंद्र नगर में है और आप रहते हैं फॉर एग्जाम्पल नारायणा में, तो नारायणा टू आपका राजेंद्र नगर जो है उसका डिस्टेंस देखा जाएगा गूगल मैप पे, राइट. और उस लोकेलिटी डिस्टेंस के हिसाब से आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे. जनरली इन द केस ऑफ लोकेलिटी डिस्टेंस, स्कूल ने डिफाइन किया होता है कि ये सारी लोकेलिटी है और लोकेलिटी से स्कूल तक जो है आपका जो डिस्टेंस है उसका आपका पॉइंट क्राइटेरिया क्या बैठ रहा है. सो यू विल गेट ऑल द स्कोर and the sheet of the locality on the website of school, and on the UniApply you will get the locality while you know when you are answering that question of distance. So आपको वहां पे वो locality का identification आप कर पाएंगे, right. So locality distance हो गया, एरियल डिस्टेंस हो गया और रोड डिस्टेंस हो गया. DOE ये कहता है कि आपको डिस्टेंस पे पॉइंट क्राइटेरिया बनाना है नेबरहुड पे, बट डिस्टेंस को एरियल रखना है या लोकेलिटी बेस्ड रखना है या डोर टू डोर रखना है, राइट. ये कंप्लीटली स्कूल की डिस्क्रिप्शन होती है. सो इस पे DOE का कोई भी ऐसा स्ट्रिंजेंट नॉर्म नहीं है, जस्ट दैट डिस्टेंस बेस्ड पॉइंट होने चाहिए, राइट. सिमरन जी का क्वेश्चन है, डू वी नीड टू अटेंड ड्रॉ ऑफ लॉट फॉर ईच स्कूल. मैम, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि कई स्कूल्स के ड्रॉ जो हैं वो एक ही दिन होंगे और एक ही टाइमिंग पे होंगे. सो अगर आप 20 स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आइडियली एक पेरेंट को करना चाहिए अप्लाई एज मेनी नंबर्स एज दे कैन, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी, आप सारे स्कूल का ड्रॉ नहीं अटेंड कर सकते, नंबर 1. नंबर 2, looking at the COVID scenario and the COVID protocol, school give access or entry only to first 50 parents. So for example, जो टाइमिंग देंगे उस क्यू में जो 50 पेरेंट्स होंगे, या अगर स्कूल कैंपस बड़ा है तो 100 या 150 पेरेंट. अब मान लीजिए 2000 पेरेंट्स ने अप्लाई किया और दोनों पेरेंट्स जा रहे हैं, तो देयर विल बी 4000 पेरेंट्स. सो स्कूल तो इतने लोगों को अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, राइट. सो स्कूल विल अकोमोडेट ओनली फ्यू पेरेंट्स फॉर ड्रॉ, राइट. सो आप इन एनी केस सभी स्कूल का ड्रॉ अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट लार्जली स्कूल जो है उसका लिस्ट लगा देता है और देयर इज अ नॉमिनी एंड देयर आर पेरेंट्स हु वैलिडेट दिस कॉन्सेप्ट. सो देयर इज अ प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय DOE जिसमें ये सारी चीजें डिफाइन है, और ताकि ड्रॉ को ज्यादा से ज्यादा फेयर बनाया जा सके बाय द स्कूल. ये जतिन सर का एक क्वेश्चन है, डज यूनी अप्लाई हैव एन ऐप.
So, sir, I would like to tell you that this app is available on Play Store for Android users and iOS users both. आप जाकर Play Store में ये app install कर सकते हैं and even you can start your school search by today itself. Adding to this, you have the Android app for the Android users, and also if you want to just add the iOS app, you can just also have the iOS app for the iPhone users. इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैं बताया था हमारे व्यूअर्स को कि कास्ट कैटेगरी से रिलेटेड आ रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। सो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। या तो आप इन दी कैटेगरी ऑफ जर्नल सीट्स, यहाँ पे हमें ये समझना होगा ये कास्ट बेस्ड सीट्स नहीं है, यहाँ पे जनरल सीट्स रिजर्व है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और चाइल्ड विद स्पेशल नीड सीडब्ल्यूएसएन के अंडर रिजर्व है और मैनेजमेंट कोटा है। सो आपको इन्हीं 3 कोटा में से किसी एक में आप अप्लाई करेंगे। And this is a common question of Veer Singh ji and a lot of other parents, which I am answering, right? So Manisha Bhatia ji का है, मैम आप जाके स्कूल को द्वारका का फिल्टर लगा के you can check schools in Dwarka and you can see the detail page of a school and you can get your answer that what are the detailing of the school, that you can probably go on the uniapply.com and check in that particular area. You can find a lot of schools in Dwarka on UniApply. You can go and on a single click, you can apply to lot many schools, ma'am. रोमियो जी का क्वेश्चन है कि यूनी अप्लाई पे कैसे उनको अप्लाई करना है। नॉट ऑल स्कूल्स आर देयर, सो डेफिनेटली वी आर गेटिंग द स्कूल्स ऑन यूनी अप्लाई। आप उस स्कूल को सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे अप्लाई का बटन दिखेगा, ऐड टू अप्लाई का, आप उसको ऐड टू अप्लाई करेंगे एंड यू कैन अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर स्कूल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एक गौरव जैन जी का क्वेश्चन है अडॉप्टेड चाइल्ड पे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके केस में, बिकॉज इफ यू हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड यू कैन अडॉप्ट चाइल्ड लीगली, राइट? इन दैट केस ओनली एफिडेविट विल नॉट बी सफिशिएंट, सो यू नीड टू हैव एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन प्लेस। रेंट एग्रीमेंट का क्वेश्चन मैं काफी हद तक क्लियर कर चुका हूँ, बट 2 पेरेंट्स का ऐसा कॉमन क्वेश्चन आया है कि ग्रैंड पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ है। अगेन दिस इज अ स्पेसिफिक केस, यू इट इज स्कूल्स डिस्क्रिशन, बिकॉज डीओई कहता है कि पेरेंट्स का जो है बेसिकली एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, राइट? सो अगर आपके पास चाहे इलेक्शन कार्ड है उस एड्रेस का, राशन कार्ड है या कोई और आधार कार्ड पे मान लेते हैं आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं उस सिटी में बेसिकली आपका आधार कार्ड बना हुआ होगा, बट अगर आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ इस पर्टिकुलर एड्रेस का है जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ID proof. Now we have actually taken a lot of questions, and if you have any question, you can write on the email ID. Ayushi will share that slide where you can find our email ID and mobile number. You can even call. So you may find support number busy quite a time because a lot of call inflow is there. You can write an email. You can expect answer on the same day, right? And I would request my team to post the link of the blog so that parents can read that blog and they can get a lot of answer to their questions, क्योंकि बहुत सारे common question है, हमने blog में काफी कुछ mention किया हुआ है, right? So with this I would like to thank each one you to attend such a lengthy webinar, and I'm sure that we would be able to help you, and we'll be bringing more such webinar in future and soon, right? So that we can answer more of your queries and ease out your entire process to nursery admission, and UniApply will ease out your application process. Thank you so much for being with us. Wish you good luck for the admission of your child. We are signing off. Goodbye.